So in our last class, we discussed the mixed design, and and there were some introductory slides. So we have gone through. So today we are going to discuss again a bit, and then we will go again a bit ahead. So uh, mixed design is basically uh, the it's the process through which the parameter of the concrete, such as air content, workability, and required strength, are established at the minimum cost of the concrete. This means that we are designing the proportion of concrete in such a way that at minimum cost we can achieve the required properties of concrete. Is basically translate the mixed design. Okay, hopefully you got understood. And whereas sometimes mixed design is synonymously used for mixed proportioning. What is mixed proportioning? Mixed proportioning is basically the proportion of concrete and gradients. Okay, for example, how much uh, would be the sand, would be the coarse aggregate, cement, and the water in the concrete. ठीक है ना? इसका जो proportion है, तो वो जो है उसकी जो रेशो है, the ratio of the proportion is known as mixed proportioning. Whereas the mixed design क्या है? Mixed design at the proportion is set in such a way that at a minimum cost we can achieve required amount of concrete properties like fresh concrete properties like workability and air content, and the hardened properties like the strength and the durability of the concrete. Okay, so here's a mixed proportion. How you can see this pie chart. So the how mixed proportion behaves, like the more than 50% of the concrete or 60% of the concrete is composed of the coarse aggregate, and the rest of 50% is almost 25% of that is the fine aggregate. More than 25%, almost the 70% of the whole pie is composed of aggregates, whether fine aggregate and the coarse aggregate. Whereas the cement and water भी आपके पास होता है. Here you can see water amount is a bit more than the cement amount. आप जो ना काइंडली बंद कर दें अपना माइक. अच्छा, you maybe you are seeing the water content is slightly more than the cement amount, but it is not the case in real world. Basically, water amount is always when we measure in terms of their weight, it is the half the weight of the cement weight. ओके, जिस आपने 0.5% 0.5 रेशियो रखनी है और 50%, then the water amount will be the half the amount of the cement weight. If the cement amount was a cubic meter concrete में अगर cement 400 kg है, तो then the water amount will be the 200 kg. ठीक है? And then there is a slight portion that is mixed with the for is placed for the cushion is there for admixtures. अच्छा, ये जितने ingredients हैं, all ingredients including water, including sand, including aggregate, are always calculated and estimated in terms of cement weight of the cement. उसके साथ इसको जो ना measure करते हैं. For example, water is 0.5, हम लेते हैं ना water to cement ratio, तो cement के साथ ratio होती है. Similarly, admixture जब add करते हैं, admixture is always added in terms of the percentage of the cement. Whereas the fine aggregate आपने देखा होगा ना 1:4 ratio होती है. 1 is the cement, 2 is the sand, and 4 is the coarse aggregate. ऐसे ही है ना. तो ये ratio जो है cement से निकलती है. ठीक है? अच्छा, तो this ratio is for the layman ratio. Okay, this is not for engineers ratio. Engineers आपको mixed design खुद करना है, keeping in a view of the properties of coarse aggregate and fine aggregate. आप इनको आप देख के, and then you are keeping in a view of your
ऑन रिक्वायरमेंट आपकी जो है आपका जो ना फ्रेश प्रॉपर्टीज क्या रिक्वायर्ड है आपको, और हार्डन प्रॉपर्टीज कैसी रिक्वायर्ड है, कोर्स एग्रीगेट का मेनली साइज क्या होना चाहिए। तो ये सारा देख के आपको अवेलेबल जो है ना आपको मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, तो उनको देख के देन एवरी इंजीनियर्स should have the skill to formulate and to design the mix at site. जी सॉरी सर, आपको जो है ना बताने हैं सर, ये 512 का वो कह रहा है कि मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, उससे ना पता नहीं क्या इशू है, उससे मीटिंग नहीं शो हो रही। जस्ट अ मोमेंट, अभी बोले फिर। सर 512 2019 512 512 who is 512? एक मिनट। सर वो कह रहा है कि उसे मीटिंग जो है ना वो शो नहीं हो रही, आप उसे इनवाइट कर लें। इनवाइट कर लूं? वो तो मुझे इनवाइट नीचे भी नजर नहीं आ रहा कहीं पे। सर वो यही कह रहा है कि उसे मीटिंग ही नहीं शो हो रही टीम्स पे, तो आप उसे इनविटेशन भेज दें। इनविटेशन, एक मिनट। आई डोंट नो हाउ टू इनवाइट। सर ये लिंक ग्रुप में अच्छा, शेयर उसमें उसमें लिख दूं? ठीक है ठीक है। यू क्या नंबर उसका? यू 2019 है टोटल 5.2 512। गॉट इट। मीटिंग में सर। हाँ, अब स्क्रीन पे आ गया है अवेलेबल है। सर। ओके, दैट्स सर मैं मीटिंग में सर। जी। Anybody has the issue? नो No, सर sir. नो। Okay, okay, thank you. So let's resume the class. Okay. In mixed design, there is some data we place as input. That what should be the input? The input should be the what kind of construction we are going to construct, and what kind of environment that our concrete must be exposed, and what kind of structural requirement for the concrete. ये जो ना एंड फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंक्रीट एलिमेंट एज वेल। तो ये जो है, ये जो चार पांच चीजें जो ना हमें बेसिकली बेसिक डेटा रिक्वायर्ड होता है। फ्रॉम दे डेटा वी डिराइव सम आउटपुट डेटा। आउटपुट डेटा कैसे है? फॉर एग्जांपल फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंक्रीट एलिमेंट, उससे हम लेते हैं कि हमें मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज क्या होना चाहिए। सही है ना? एंड देन द कंस्ट्रक्शन मेथड से हम देखते हैं कि इसकी वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प हमने कितना रखना है। और देन द सीइंग एक्सपोजर कंडीशन, basically we design the durability and the air content in the concrete, उसको हमने कैसे रखना है। and again the durability issue is governed with the help of the water cement ratio and the percentage of the air voids in the concrete। and this जो structural requirement है, तो structural requirement के लिए आपके पास जो है ना modulus of rupture and if आपके पास जो है ना जो crushing strength है concrete की, और इसके अलावा जो है उस मॉड्यूलस फिलॉसफी, वो जो है अब उसको जो डिजाइन करते हैं, और वो हमें उसके लिए लोकेशन जो अमाउंट है उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली वी आर कीपिंग इन द डिजाइन। ठीक है। Last time we discussed that these are the concrete ingredients and how these ingredients are measured in terms of their units। और इसमें आप देखेंगे कि सारे यूनिट्स जो है ना मोस्टली अपार्ट फ्रॉम एयर कंटेंट एंड मिक्सर्स, सारे यूनिट्स जो ना मेजर्स होते हैं इन टर्म ऑफ केजी पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट। ठीक है ना? और पाउंड्स पर क्यूबिक यार्ड ऑफ द कंक्रीट। अब जो है ना जितने भी आप कैलकुलेट करोगे ना वाटर, तो आपने इनिशियली इन द डिजाइन स्टेज यू विल हैव ए क्यूबिक मीटर कंक्रीट, उसके लिए आपने डिजाइन करना है। ठीक है ना? सीमेंट के लिए भी आप जो है ना जैसे करेंगे, और कोर्स एग्रीगेट आप देखेंगे, फाइन एग्रीगेट देखेंगे, इसमें ना आपने क्या करना है, इनके केजी मेजर करना है इन टर्म ऑफ देयर वेट फॉर द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। यूनिट वॉल्यूम आप क्या लेंगे? क्यूबिक मीटर। सिमिलरली एयर कंटेंट आपने परसेंटेज में लेना है, परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ दैट वॉल्यूम। ठीक है ना?
और आपने बाकी जो है आपने मिलीलीटर में मेजर करना होता है एयर इंटेनिंग एडमिक्सचर्स एंड द अदर केमिकल एडमिक्सचर्स, ठीक है ना। एंड देयर सम ग्राफ्स, ये जो है ना आपके पास जो है ना जब आप करेंगे ना मिक्स डिजाइन, तो आपके पास किस्म के आएंगे, वाटर टू सीमेंट रेशियो का ग्राफ आएगा, इसके अलावा आपके पास वर्केबिलिटी का आपके पास जैसे ग्राफ आएगा, इस किस्म के बाकी ग्राफ्स भी आएंगे एयर कंटेंट के और स्ट्रेंथ के और लेवल के, सही है ना। तो थ्रू दीज ग्राफ्स हाँ यू कैन एस्टिमेट और कोरिलेट द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, or before going to max design, there are some parameters that how these parameters are translated in the max design, and what could what could measure be taken in designing the max design while keeping these parameters. तो इसमें जो है the first and foremost one is the strength of the concrete. And concrete जो है basically concrete is meant for the two things. One is its moldability. It can be molded into any shape, any kind, ठीक है ना, आपके पास versatile use है इसका. And another one is the required strength. The only materials in the world that will give you required strength at so low cost, ठीक है ना। तो तो वो भी concrete है. Any materials that can be molded into any shape and giving you the required strength is the concrete, ठीक है ना। तो आपके पास जो ना, and strength is always measured in term of their compressive strength, सही है ना। sometime आपके पास flexural strength भी हम जो ना लेते हैं, सही है ना। और और जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ जो मेन पैरामीटर्स है इसको हम जो ना सामने रखते हुए बेसिकली ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है ना कंक्रीट की। अगर आपने कंक्रीट की एक बिल्डिंग बना ली और उसकी जो है ना स्ट्रेंथ उसकी प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा बच्चे? हम्म सर क्वेश्चन रिपीट करें सर। ability or age. उसकी स्ट्रेंथ अगर प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ की इक्विवेलेंट नहीं है तो देन द बिल्डिंग विल फेल, सही है ना। तो ध्यान से नीचे आ गिरेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा? अच्छा, सिमिलरली आपने ड्यूरेबिलिटी सुना होगा। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? के मतलब स्ट्रक्चर जो है वो कितने टाइम के लिए सर्विसेबल है, मतलब अपना काम करेगा। एग्जैक्टली, बेसिकली ड्यूरेबिलिटी इज द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, सही है ना। तो आपके पास एक स्ट्रेंथ आपने बिल्डिंग ने या कंक्रीट ने अचीव कर दी, उस वो स्ट्रेंथ ओवर द टाइम लूज हो रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सही है ना। तो वो जो है ना देयर इज काइंड ऑफ ड्यूरेबिलिटी इश्यूज. ड्यूरेबिलिटी बेसिकली इज द रेजिस्टेंस टू वियर, ठीक है ना, or a resistance to the wear of the strength of the concrete, or a wearing resistance जो है बेसिकली वो क्या है? ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये दीज वर द पैरामीटर्स. अच्छा, उसमें स्ट्रेंथ है, वाटर सीमेंट रेशियो है, एग्रीगेट्स हैं, एयर कंटेंट है, स्लंप है और वाटर कंटेंट है. इसमें सीमेंटिंग मटेरियल्स कंटेंट है, और सीमेंटिंग मटेरियल्स मीन सीमेंट और फ्लाई ऐश और इस किस्म के कौन से मटेरियल्स होंगे और किस रेशियो से होंगे. एंड देन द टाइप्स ऑफ द सीमेंट एज वेल. द केमिकल एडमिक्सचर्स अगेन इज द अनदर पैरामीटर्स. अच्छा, हु इज द फादर इकबाल? आप में से कौन है भाई? सर मैं 122। 122. अच्छा, तो बच्चे जस्ट मैं कमेंट दे के आगे मैं जब जानना चाह रहा था केमिकल एडमिक्सचर के मतलब यू हैव आस्क्ड अबाउट द शुगर. जी सर, मैंने शुगर का पूछा था आपसे। शुगर जो है बेसिकली जो ना एज अ रिटार्डर. आप अपना बंद करेंगे माइक तो मैं जवाब दे दूं. ओके सर। अच्छा, जो शुगर है बेसिकली इट इज द रिटार्डर. तो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं. केमिकल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? द एडमिक्सचर्स व्हिच इंटरफेयर्स द रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन which interfere the hydration process, ठीक है, केमिकली, ठीक है ना। तो ये जो है ना मतलब रिटार्डेड क्या करते हैं? रिटार्ड करते हैं इस रिएक्शन को. तो इसमें मेनली क्या होता है आपके पास शुगर में ग्लूकोज होगा, आपके पास जो है ना
ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो है ना इस रिएक्शन को इंटरफेयर करते हैं, उस रिएक्शन को क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो ये जो ना दैट्स व्हाई दैट इज दी। इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री से ना आपके पास आजकल रिफाइंड मिलता है, नॉट शुगर। शुगर किससे बनती है भाई? शुगर कैन से बनती शुगर है। कैन से, जी सर। अच्छा, शुगर कैन का जो जो शुगर कैन इंडस्ट्री से आपके पास एक आजकल जो है ना एक रिटार्डर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरे नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो जो उसका शुगर का जो हस्क होता है ना, हस्क नहीं सॉरी, उसका जो शुगर कैन से जो जूस निकलता है, तो उससे उसका एक्सट्रैक्ट है। तो उससे ना अभी जो ना आजकल जो मॉडर्न डे में आपके पास केमिकल एडमिक्सचर्स बनता है, लेकिन ये जो इट्स जो शुगर है ना, ये जो ग्रेन्स वाली शुगर है, इसको समटाइम दैट वाज यूज्ड एज पाउडर फॉर्म, बट लेटर इंजीनियर रियलाइज दैट इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आपके पास जो है ना जस्ट लाइक 1% आप ऐड करेंगे ना, 0.1% ऑफ द सीमेंट वेट, तो वो आपको एक खास एक्सटेंट तक उसको डिले कर लेगी। 0.2% करेंगे तो वो डबल ट्रिपल लेवल पे आप डिले कर लेगी टाइम। अगर आप 0.3 0.4% पे जाएंगे ना, तो मे बी इट कुड डिले फॉर डेज। ठीक है ना? तो वो दैट इज नॉट अफोर्डेबल। तो इसलिए इसको जो है ना डिस्करेज करते हैं। और इसका जो है ना इंजीनियर्स जो है ना इसका यूज तो पता है कि भाई ये अगर यूज हो जाए तो इससे क्या जो ना डिट्रीमेंटल इफेक्ट है कंक्रीट पे, लेकिन इट इज नॉट यूज फॉर फॉर इंटेंडेड पर्पस। उसके लिए जो है we have another kind of chemical mixers for delaying or retarding effect, giving the retarding effect. Okay? जी सर। और- सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम कंक्रीट के हाइड्रेशन रिएक्शन को लाइक मैंने good अभी ये question. जो थर्ड सिंबल है सर, उसमें मैंने जो शुगर डाला है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब उसकी अभी भी हार्डनिंग नहीं आ रही, तो अगर ये लाइक लेट्स से फॉर मंथ, एक मंथ के लिए डिले हो गया, तो एक मंथ बाद पॉसिबल है कि अगेन दोबारा अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले और ये हार्ड हो जाए, लाइक असल काफ़ी में ना ज़्यादा एक और है। इश्यू, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ना। केमिकल ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन होते हैं ना, तो ये जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली ये compare कर रहा है, लेकिन उसको जो सेकंड ऑफ द कंप्लीट है, वो तो उससे होती है, क्या कहते हैं, ट्रेंगाइट फॉर्मेशन से होती है। ये अंदाजा नहीं है कि ट्रेंगाइट फॉर्मेशन को ये कितना इफेक्ट करता है और किस लेवल पे जाके करता है। ठीक है ना? अगर इफेक्ट करता भी होगा तो मुमकिन है किसी हद तक जो ना, अगर ट्रेंगाइट्स ऑलरेडी बन गए हैं और कंक्रीट जो है ना दे हैव इट हैज लॉस्ट द प्लास्टिसिटी, तो उसके बाद भी जो है उसके उसकी उसकी हार्डनिंग नहीं हो रही because of the delaying reaction of the hydration process of the calcium silicate, तो फिर जो है उस केस में ना स्ट्रेंथ लूज होगी। सही है ना? और जी सर। और अगर जो है ना एज ए टोटल जो है इसको जो है ना सारे रिएक्शन को जो है ना ये इम्पेड कर लेता है और इक्वल अमाउंट पे कर रहा होता है, तो उस स्टेज में फिर नहीं होती। अब समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल 3 दिन के लिए कोई चीज डिले है, और उसकी मैं एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि जैसे एपॉक्सी है, आपने एल्फी देखी है कभी? जी सर, देखिए। एल्फी को जो ना आप 1 महीने बाद भी आप जो ना निकाल के यूज करो ना, तो उसका वही इफेक्ट होता है जो पहले दिन जब एल्फी बन के आती है तो आप यूज करो। पता क्यों? नहीं सर, नहीं पता है। उसका जो बेसिकली रिएक्शन एयर से होता है ना, जब एयर को एक्सपोज होगी तब वो हार्ड होगी, जब तक एयर को एक्सपोज नहीं होगी तो वो हार्ड नहीं होगी। जी सर, एग्जैक्टली। समझ आ रही है ना? तो सिमिलरली जो सीमेंट का जो रिएक्शन है वो वाटर से है, जब भी वाटर को ये एक्सपोज होगा तो उसका रिएक्शन होगा। तो ये जो बेसिकली आपके पास जो है ना हम डालते हैं शुगर्स या रिटार्डर्स, तो ये उसके रिएक्शन को किसी स्टेज तक आपको इंटरफेयर कर सकते हैं, और टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं। 80% कर लेते हैं, 60% कर लेते हैं, 30% कर लेते हैं, तो 100% इफेक्ट नहीं हो पाता। सही है सर, समझ आ गई। ठीक है ना? समझ आ रही है ना? तो ये जो है फॉर जी सर। एग्जाम्पल आपने जो ना आप कहते हैं ना कि 3 दिन तक 4 दिन तक वो जो ना उसका जो ना स्टिल जो ना आपके पास फ्रेश स्टेट में है, तो मुमकिन है उसका 90% या 80% फ्रेश स्टेट में हो, बाकी थोड़ा सा मतलब ये कि 20% उसमें हार्डनेस आ चुकी हो, या उसका रिएक्शन अंदर से हो चुका हो 20%, लेकिन वो हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि 80% स्टिल अनहाइड्रेटेड। जी सर, नहीं सर, थोड़ी बहुत हार्डनिंग थी उसमें, लाइक वो अपना शेप मेंटेन कर रहा था जब मैंने उसे
बेस से निकल रहा है तो अपना एग्जैक्टली शेप मेंटेन करेंगे। दैट्स मीन दैट इट हैज लॉस्ट प्लास्टिसिटी, उसका जी जो है सर ना एग्जैक्टली। एट्रिंगाइट फॉर्मेशन हो चुके हैं। बेसिकली इट हैज डिलेड, ये जो शुगर था तो इसने क्या डिलेड किया, उसका ओनली दी सिलिकेट का जो पोर्शन है ना, कैल्शियम सिलिकेट्स वाला, उसको डिले जी किया, सर सही है सर, समझ आ गई है तो सर जिससे चलिए। स्ट्रेंथ फॉर्मेशन को, तो इसका जो है ना ये स्ट्रेंथ जो ना लूज करेगी। इसका मैं एक और एग्जांपल मैं दूं आपकी कि इन अर्ली डेज ऑफ माय जॉब इन यूआईटी पेशावर, तो वहां पे एक प्रोफेसर हैं, तो वो अपने बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट करवा रहे थे कि ब्रिज डिजाइन पे, कि ब्रिज में जो कंक्रीट यूज होती है ना आपके पास, आप ब्रिज में ना नॉर्मली आजकल तो मेरे ख्याल में ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब ये टेक्नोलॉजी है ब्रिजेस की कि जो होती है क्या कहते हैं रिइंफोर्समेंट के बजाय वो प्री स्ट्रेस ब्रिज डिजाइन होते हैं। प्री स्ट्रेस के लिए ना आपके पास मिनिमम जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए केएसआई में, ठीक है। तो जी सर वो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे कि ऑन जॉब साइट पे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट डिजाइन करवाना चाह रहे थे, प्रोजेक्ट था, रिसर्च प्रोजेक्ट था। और बच्चे मेरे पास आए कि ये क्वेश्चन लेके कि सर हमने प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के जो स्पेसिमेन थे उनकी स्ट्रेंथ है नॉर्मल स्ट्रेंथ से भी कम आ रही है। देखो ना, उल्टा हो गया ना, जो नॉर्मल जी सर स्ट्रेंथ थी अगर वो 3000 पीएसआई या 4000 पीएसआई आनी चाहिए, तो उसके जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट थी जिसके 6-7,000 पे डिजाइन थे, वो स्पेसिमेन दे वर गिविंग 2000 पीएसआई या 2500 पीएसआई। तो उनका ये इशू था, तो उसने कहा सर हमें मतलब पिन पॉइंट करेंगे ये हमें क्या मसला है। तो जब उनके स्पेसिमेन व्हेन आई विजिटेड देयर स्पेसिमेन, तो उन्होंने जो यूज किया था वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए जो प्लास्टिसाइजर्स, तो उसकी अमाउंट ज्यादा रख ली, और वो जो प्लास्टिसाइजर्स डे 3 पे या डे 4 पे जो स्पेसिमेन थे दे वर नॉट हार्ड स्टिल, मतलब वो सॉफ्ट थे, वो सेट नहीं हुए हुए थे, हार्ड नहीं हुए हुए थे। उन्होंने उसको पानी में रखा एंड देन सीमेंट कंटेंट गेट डिजॉल्व इन वाटर, तो उसमें ना पाइपिंग बन गई, उसमें जो ना अंदर वाटर इंक्लूड हो गया स्पेसिमेन के अंदर। तो वो जो है दैट्स व्हाई वो जो ना उसकी प्रॉपर कवरिंग भी नहीं हुई, और उसका जो जो स्ट्रक्चर थी उसकी जो स्पेसिमेन की वो डिस्टर्ब हुई, और दैट्स व्हाई दैट गॉट लेसर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो उनको फिर मैंने कहा कि आपको तो ये पहले जो ना डिजाइन करना चाहिए था कि कितने आपने जो केमिकल मिक्सर्स है ना इसमें इन टर्म ऑफ देयर प्लास्टिसाइजर्स, तो वो कितने अमाउंट आपकी रिक्वायर्ड है, और उस आपने मिक्स डिजाइन किया ही नहीं है, तो आपने कैसे ये कर लेते हैं। उसके लिए जो ना प्रॉपर आपको जो ना मिक्स डिजाइन करना है, इसमें एग्रीगेट्स कितने पड़ने हैं, इसमें फाइन सैंड कितनी होनी है, इसमें जो है ना सीमेंट कंटेंट कौन सी टाइप ऑफ सीमेंट यूज होगी, और कौन सा केमिकल मिक्सर यूज होगा, और किस अमाउंट से यूज होगा। तो ये सारी चीजें जब आपके पास सेट हो जाएंगी, तो देन यू कॉज योर स्पेसिमेन, तो उस वक्त पर आपको ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है ना ये होता है सम टाइम। तो if being engineer you are using the layman language or the layman style of the working, तो sometimes you suffer, ठीक है। तो आपको प्रॉपर जो ना इंजीनियरिंग जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको टच करना चाहिए, ठीक। तो स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल रेंज में हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ बेसिकली अपार्ट फ्रॉम अदर पैरामीटर्स लाइक आपके पास जो एग्रीगेट्स हैं, स्ट्रेंथ इज अगर उन सब ट्रांसलेट करती है किसको, स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ जो ना बेसिकली हम लोग कहते हैं ना वाटर सीमेंट रेशियो मेरी कम थी और फिर स्टिल आई कुड नॉट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिकली आपका जो डिजाइन था उसमें जो है ना आपने एग्रीगेट्स का प्रॉपर, आपके पास साउंड एग्रीगेट नहीं होंगे, क्लीन एग्रीगेट नहीं होंगे, क्लियर एग्रीगेट नहीं होंगे, एग्रीगेट्स की एग्रीगेट टू टू सेंड टू एग्रीगेट रेशियो जो है वो प्रॉपर आपके पास नहीं होगी। एंड देन यू मस्ट हैव another thing that उसकी कंपैक्शन जो है ना प्रॉपर नहीं होगी। एंड another thing is the air content। एयर कंटेंट जो है आपके पास जो ना कंक्रीट में जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है उसमें एयर कंटेंट मस्ट बी लोअर देन 2% से कम हो। तो इफ द एयर कंटेंट आर 5% और 6% और 4% इन द कंक्रीट, तो आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ यू विल नेवर अचीव दैट अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है।
क्यों अचीव नहीं करेंगे? ऑलरेडी जो है ना आपके पास जो है ना 20 to 30% स्ट्रेंथ विल बी लॉस्ट इन इंजेक्टिंग द एयर कंटेंट आपके पास जो है ना, और इन एंट्रैपिंग एयर, तो उसमें एयर जो है यू लूज द स्ट्रेंथ, और द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो है विल बी इम्पेयर्ड। ठीक है, तो वो उससे भी इशू बनते हैं। तो उसके साथ आपके पास जो है ना, टू हैव गुड स्ट्रेंथ, आपके पास प्रॉपर मिक्स डिजाइन हो, टू हैव गुड स्ट्रेंथ आपके पास जो है ना प्रॉपर स्ट्रेंथ की मिक्सिंग, कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर मिक्सिंग हो, प्लेसमेंट हो, उसकी कंपैक्शन हो, एंड एट द रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है ना, एक सर्टेन वाटर सीमेंट रेशियो पे सारे मिक्स्ड हो, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो वेल मेंटेन्ड हो। For example, if you want to keep water cement ratio 0.5 or 0.45, and you are using the wet aggregate and you are not accounted for the water amount in the aggregates, अब जो aggregate wet थे, तो वो जो है ना आपके पास जो है ना वर्चुअली आपके पास अपने वाटर सीमेंट रेशियो 0.5% है, बट इन एक्चुअल केस और इन इफेक्टिव केस वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, क्या होनी चाहिए? फिर ज्यादा होगी ना, क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग द वेट एग्रीगेट। तो जो एग्रीगेट्स के वाटर कंटेंट है, तो उसको आपने क्या करना है, उनको आपने अकाउंट फॉर करना है फॉर द अमाउंट ऑफ द वाटर यू आर एडिंग इन द कंक्रीट। ठीक है बच्चों, ये आगे डिटेल में इसको देख लेते हैं। सिमिलरली स्ट्रेंथ को जो पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स। इसमें एक जो है ना वाटर सीमेंट रेशियो है, उसके अलावा एज ऑफ द स्ट्रेंथ है, एज ऑफ द कंक्रीट है, उस पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा जो है क्यूरिंग टाइम है, क्यूरिंग आपके पास जो है ना जो वो है क्या है भाई, क्यूरिंग टाइप है, और अमाउंट ऑफ द सीमेंट है। तो ये सारे जो चीजें जो है ट्रांसलेट करती हैं, टाइप ऑफ सीमेंट है। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो पे किस चीज से चेंज होगी? changes in the aggregate size, grading, surface texture, shape, strength and stiffness of the aggregate. ये जो सारे पैरामीटर्स हैं aggregates के, तो by changing these parameters strength will be affected. Similarly, if we use different type of cement and the source of the cementing material, वो भी strength को affect करेगा। Entrained air content भी उसको affect करते हैं, उसको किसको, strength को। The presence of admixtures and the length of the curing time and temperature, of course these were affecting the strength of the concrete. अच्छा, there is some condition आपके पास जो है ना, ये condition जो है ना basically ये these are the quality control of the concrete। तो ये मैंने आपके लिए जो ना यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, this is worth mentioning at this stage। आप देखें इसको, the specified compressive strength at 28 days क्या होती है भाई, कौन सी स्ट्रेंथ होती है? is a strength that is expected to be equal or exceeded by average of any set of 3 consecutive strength tests। आपने 3 consecutive strength test करने हैं, और उनका जो एवरेज है या उस एवरेज से एक्सीड कोई करती है, तो दैट विल बी योर डिजाइन स्ट्रेंथ, स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। समझ आ रही है ना? आपने अगर स्ट्रेंथ जो ना आपने स्पेसिफाई की है, और वो जो आपके पास 3 कंसेक्टिव टेस्ट हैं, तो उनकी एवरेज जो है ना, इफ इट इज फॉलिंग हायर देन द स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, तो आपकी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ वो नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो आपके पास जो कंसेक्टिव टेस्ट हैं, दैट ये जो इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी इक्वल हो या एक्सीडेड हो उस स्ट्रेंथ से जो आपने स्पेसिफाई की है, देन दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके अलावा जो आप टेस्ट करेंगे, नो इंडिविजुअल टेस्ट कैन बी मोर देन 3.5 मेगापास्कल बिलो द स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ। ठीक है ना? अगर आपके पास स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ जो है ना, इफ इट इज 25 मेगापास्कल, तो आपके पास इंडिविजुअल टेस्ट का जो रिजल्ट है, इट शुड नॉट बी लेस देन 21.5 मेगापास्कल, किसी एक का नहीं होना चाहिए ना। एंड another one specimen क्या हो, लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हो, और लेबोरेटरी में क्या हो, क्योर्ड हो। आपके पास एक्सपोजर कंडीशंस, डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए वाटर टू सीमेंट रेशियो है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
सर ये दूसरे पॉइंट वगैरह समझा है सर, नो इंडिविजुअल टेस्ट मॉडल। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है ना, बेसिकली ना आपने फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड का आपकी स्ट्रेंथ है वो है 25 मेगापास्कल, ठीक है ना। आपने 3 स्पेसिमेन टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए ना, तो आपके पास जो इंडिविजुअल स्पेसिमेन है वो से बिलो नहीं होना चाहिए 21.5 मेगापास्कल से, नहीं समझे? यहाँ पे तो 500 की सही कम है। आपके पास नो इंडिविजुअल टेस्ट ना, इसमें वेरिएशन ना हो ना बिलो दिस स्ट्रेंथ, यानी 500 पास्कल ये लिखा है कि आपके पास जो है ना 2500, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 3000 आपके पास पीएसआई स्ट्रेंथ है, तो आपके पास इंडिविजुअल जो टेस्ट है दैट शुड नॉट बी लेस देन 2500 पीएसआई, इतनी वैल्यू बिलो ना हो यार। सही है सर, सही है। With this amount the value should not be more than that, सही बिलो है फॉल सर। ना करे। मतलब अगर ये सर 2500 है तो इंडिविजुअल 2000 से कम नहीं रहना चाहिए। 2000 से कम नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल टेस्ट पे। तो अगर मेगा पास्कल में मेजर करेंगे, मेगा पास्कल तो होता है ना आपके पास जो ना, उसको आप 120 145 को डिवाइड करते हैं पीएसआई में, तो देन यू आर गेटिंग दी वैल्यू इन द मेगा पास्कल। तो आपके पास स्टैंडर्ड में मेगा पास्कल में वैल्यू मेजर होती है ना, तो उस पे मैं बात कर रहा था। चले, और थैंक यू। here the exposure conditions आपके पास water to cement ratio, आपने different exposure condition पे आपने कैसे कितनी आपके पास रखनी चाहिए। For example, look at here, if the concrete is exposed to freezing and thawing, the water minimum water cement ratio आपने कितनी रखनी है? Point not the minimum, maximum water cement ratio 0.45, सही है ना। और 0.45 आप water cement ratio रखेंगे तो it will give you a strength of 31 megapascal. Similarly, if the concrete is exposed for the corrosion, तो और brackish water, sea water, तो उसके लिए water to cement ratio आप कितनी रखेंगे? 0.4। सर जी, ये तो स्लाइड चेंज, पुरानी स्लाइड। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये स्लाइड चेंज नहीं होगी सर। स्लाइड चेंज नहीं हो रही, हुई है। यस सर। कंडीशन वाली स्लाइड है सर। Just a moment, please. अभी स्लाइड अपीयर हो रही है बच्चों, नजर आ रही है आपको? नहीं सर, वही 9 नंबर स्लाइड नो शो कर। सर। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मैंने लाइन पे आ गया हूँ। अच्छा, okay, now you can see नहीं सर, still 9 numbers. वो 9 नंबर स्लाइड शो कर रहे हैं सर। Okay, मैं उसको जो ना दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है ना। स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर इट अगेन। व्हाट अबाउट नाउ? अभी और है सर। अभी हो गई सर। ओके, थैंक यू, अच्छा है यार आपने बता दिया। हम्म। तो आपने जो है देयर इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो आपके पास फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंक्रीट। तो डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस पे आपके पास जो ना, फॉर इफ द कंक्रीट इज फॉर नॉर्मल एक्सपोजर देयर इज एन नो ड्यूरेबिलिटी इशू, आपकी वाटर सीमेंट रेशियो आप जस्ट आप सेट करेंगे अपने रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के लिए। एंड देन इफ द कंक्रीट इज एक्सपोज टू टू फ्रीजिंग एंड थाइंग कंडीशन, या इसमें कोई इशू है आपके पास, तो देन इट द वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आपने कितनी रखनी है?
0.45, सही है ना, उसको एक्सीड नहीं करना मिक्स डिजाइन के वक्त। ये डिजाइन पैरामीटर हैं, इसमें जो ना आपने अगर आपके पास जो भी वाटर सीमेंट रेशियो आएगी इससे ऊपर फॉल कर भी जाए तो आपने मिनिमम कितने रखनी है, मैक्सिमम 0.45. Similarly, if the concrete is exposed to seawater or brackish water or for the corrosion protection of the reinforcement, तो उसके लिए आपने वाटर सीमेंट रेशियो कितनी रखनी है, 0.4. और these water cement ratio will translate their strength, corresponding strength कितनी होगी इसकी, फॉर एग्जांपल 0.5 की 28 मेगापास्कल है, 0.45 की कितनी है, 31 मेगापास्कल, एंड 0.4 की कितनी है, 35 मेगापास्कल, ठीक है ना। सिमिलरली आपने जो सल्फेट रेजिस्टेंस है उसके लिए जो ना आपने देखना है डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट क्लासेस. फॉर एग्जांपल S0 stands for negligible kind of exposure of sulfate attack, S1 is the moderate, S2 is severe, S3 is very severe, ठीक है ना। तो these are these sulfate exposure. तो उसके लिए आपने ये टाइप ऑफ सीमेंट आप कौन सा यूज करेंगे, नॉट सल्फेट रिक्वायर्ड, कोई सल्फेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप नॉर्मल सीमेंट यूज कर सकते हैं. इन केस ऑफ द मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस यू कैन यूज टाइप 2 टाइप ऑफ सीमेंट, एंड वेयर फॉर द स्फीयर केसेस यू कैन यूज द टाइप 5 सीमेंट, ठीक है ना। और उसके लिए ना आपके पास मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी रखनी चाहिए, आपको नेग्लिजिबल के लिए आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ यू रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आप सेट करेंगे. वेयर एज फॉर मॉडरेट रेजिस्टेंस आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो मस्ट नॉट बी मोर देन 0.5, ठीक है ना. फॉर इन केस ऑफ द सीवियर रेजिस्टेंस आर वेरी सीवियर, तो उस केस में आपने कितना रखना है वाटर सीमेंट रेशियो, 0.45 और 0.4. समझ आ रही है ना? यस सर. जी सर. आपके पास है ना, इफ यू आर डिजाइनिंग a mixed design for the case of the very severe sulfate attack, तो आपने उसका जो थंब रूल है, आपने वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.4 से ऊपर ना हो, ठीक है. एंड देन यू यूज द टाइप ऑफ सीमेंट, 0.5 जो है टाइप सीमेंट यूज करेंगे, और ये सीमेंट भी यूज करेंगे और वाटर सीमेंट रेशियो दोनों आप जो ना आप इसको कंट्रोल करेंगे, देन योर कंक्रीट विल बी सेफ फॉर एनी काइंड ऑफ severe attack of the sulfate resistance, sulfate attack. यानी आपकी जो कंक्रीट है दैट विल बी सल्फेट रेजिस्टेंस हो जाएगी ना अगेंस्ट severe attack, ठीक है. यस सर. सही है ना. अच्छा, वाटर सीमेंट रेशियो जो है, सीमेंटिंग मटेरियल रेशियो जो है, अगेन आपके पास स्ट्रेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड हियर टू काइंड ऑफ ग्राफ्स आर ड्रॉन, for one for the non air intense concrete and another one is the air intense concrete. वो देखो ना, air intense concrete का जो ग्राफ है a bit lower है ना for the same water cement ratio, ठीक है ना. आपके पास लो स्ट्रेंथ दे रहे हैं ना, क्यों लो स्ट्रेंथ दे रहे हैं बच्चे? So with each % increase in air 7 to 8% strength decrease होती है. एग्जैक्टली. अब देखो ना 0.5 पे कितना दे रहा है, ये ऑलमोस्ट 28 दे रहा है, सही है ना. और अगेन इसी 0.5 पे आपको पास नॉन एयर इंटेंट कितनी दे रही है, आपको पास ऑलमोस्ट 35, ठीक है ना. इतना डिफरेंस है. Again, water to cement ratio, with the help of that ratio we can keep our. अच्छा, आपके पास एक और चीज होती है, इसको कन्वर्सली देखते हैं ना. बेसिकली ना आपने देखना होता है कि आपने कंक्रीट आपके पास कितनी स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है. बच्चों, आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी कितनी स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है? डिजाइन से. डिजाइन से. एग्जैक्टली. किससे पता लगेगा? आप जो कंक्रीट की जो स्ट्रक्चर है ना उसके डिजाइन से पता लगेगा आपके पास. जैसे उस बिल्डिंग पे कितना लोड आएगा, या आपके पास ब्रिज है, ब्रिज पे डेक पे जो गाड़ी कितने लोड की गुजरेगी, और उस पे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना. समझ आ रही है ना. तो वो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को आप कैलकुलेट करेंगे, और वो जो स्ट्रेंथ है, जितने जो भी स्ट्रेंथ आपके पास होगी, इफ इट इज फॉर नॉन एयर इंटेंट कंक्रीट, तो आपने उसको देखना है कि और एयर इंटेंट कंक्रीट, तो
तो उस दोनों में से आपने देखना है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होनी चाहिए, what should be the water to cement ratio. For example, if the strength is 30 megapascal, for example, क्या हो 30 megapascal, 30 megapascal की क्या corresponding नॉन एयर इंटर्न कंक्रीट की कितनी बनती है 0.54 0.54 आपने वाटर सीमेंट रेशियो आपने फिक्स करनी है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली आपके पास इफ द कंक्रीट इज एयर इंटेंट, तो आपने उसके लिए कितनी आपने वाटर सीमेंट रेशियो रख लेनी है 0.45 45 एग्जैक्टली, ठीक है ना। हियर इज द केस फॉर पीएसआई, पीएसआई में वैल्यू आपके पास अवेलेबल है स्ट्रेंथ, तो उसके लिए आप देखो ना, इधर से देख लो, इफ एनी वैल्यू इन बिटवीन 30 to 35 आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू इज अवेलेबल 32 मेगापास्कल और 34 मेगापास्कल, फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या सर दोबारा बताइए। सर राउंड इफ ऑफ वी करेंगे हैव, वैल्यू जी फॉर इकबाल आप बताओ। सर एवरेज लेंगे। सर एवरेज लेंगे इन दोनों का, इंटरपोलेट करेंगे यार, एवरेज नहीं लेंगे, यू नो द इंटरपोलेशन या हाँ एक्सट्रापोलेशन, सर, नहीं यस पता, सर। पता है सर। एक्सप्लेन कर दे सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दे। इंटरपोलेशन को एक्सप्लेन कर दूं जी। यस सर, यस सर। अच्छा, इंटरपोलेशन को ना मैं आगे एक्सप्लेन कर लूंगा, वैसे आप देखो ना, लिसन, आपके पास ये वैल्यूज है, असल में ना मेरे पास वेकम नहीं है, तो मैं कैसे लिखूं इसको, जैसे ये दो वैल्यूज है ना, ये करस्पॉन्ड किसको करती है 35 को, ये वैल्यू करस्पॉन्ड किसको 30 को करती है, तो इफ वी वांट टू हैव ए वैल्यू फॉर 34, ठीक है ना, तो आपने 34 के लिए वैल्यू आपने रखनी है ना, तो आप इसको आप वो करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर, जैसे जो होता है ना x माइनस x1, यस, देखिए ग्राफ समझ के आ गया, स्लोप शुक्रिया। जी ग्राफ के स्लोप से सर पता चलती है। स्लोप से पता लगेगा, x2 माइनस x1 must be equal to y minus y1 over y2 minus y1, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ना आप इसको x रख लें, 34 को क्या रख लें, x रख लें, और इन दो वैल्यू में से किसी एक को जो है ना x1 रख लें, दूसरे को x2 रख लें, एंड देन करस्पॉन्डिंगली y1 और y2 रख लें, तो देन यू विल गेट दी y वैल्यू। तो आपके पास जो y वैल्यू होगी, तो वो आपके पास क्या होगी, तो वो कहीं पे आपके पास जो ना स्ट्रेंथ आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो आ जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? यस सर, यस सर। जी सर। सर तो ये वैल्यूज लीनियर रिलेशन में है, क्योंकि ये फार्मूला लीनियर रिलेशन में, हम यूजुअली, ओके सर, ये जो ना लीनियर रिलेशन में है, बेसिकली स्लोप से ड्राइव कर रहे हैं ना, जी सर, समझ आ गया सर। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा ऐसा नहीं है कि दीज आर लीनियर रिलेशन, इसकी रिलेशन ऐसे है ना, आप देखो ना इस तरह है, इट इज नॉट लीनियर रिलेशन, लेकिन इंटरपोलेट आप जब करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा स्लाइटली एरर के साथ आप जो ना कर सकते हैं, 0.1% एरर के साथ या 0.05% एरर के साथ, तो दैट इज सो नेग्लिजिबल एरर, कोई ऐसा इशू, ठीक है। ओके सर। अच्छा, सिमिलरली कोर्स एग्रीगेट जो है आपके पास, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, तो आपने जो कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है बच्चों, कैसे आपने डिसाइड करना है, आप ना आप साइट जो ना बीइंग ए साइट इंजीनियर, तो यू आर गिवन ए चॉइस
to select a course aggregate from two consignment, आपके पास दो पड़े हैं, one is the half inch down size and another one is the 1 inch down size of the course aggregates. मैक्सिमम कोर्स साइज है ना उनका, हाफ इंच डाउन है, दूसरा 1 इंच डाउन है, तो आपने कौन सा वाला करना है बच्चों, कैसे आप जो है करेंगे? कम है सर सही इसका साइज Required कम होगा strength के मुताबिक जी। sir, based on the required strength sir. नहीं, स्ट्रेंथ का तो ताल्लुक है, लेकिन आपका तो डिजाइन अभी आपने डिजाइन नहीं किया, उसका मिक्स डिजाइन भी बनाना है, लेकिन आपको ना दोनों अवेलेबल हैं कोर्स एग्रीगेट, तो आपने छोटा वाला लेना है या बड़ा वाला लेना है? और मेरे ख्याल में पर छोटा वाला है। छोटा वाला लेंगे। अच्छा जी बच्चों, आप में से और कोई बताए? हाँ, eldest one। बड़े का strength अच्छा, ज्यादा उसमें ना होगा सर। आपने अभी ध्यान से सुनना है, होपफुली ऑल ऑफ यू कैन लिसन मी, ठीक है? सारे सुन सकते हैं? यस सर यस सर I'm audible? ओके। Yes, sir. अच्छा अच्छा, 5 पैरामीटर्स हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 5 देयर आर 5 पैरामीटर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल डायमेंशंस, तो वो जो है ना, these 5 पैरामीटर्स विल ट्रांसलेट द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। आपके पास ये जो इन 5 जो है ना पैरामीटर्स में जो मिनिमम आपके पास जो वो होगा पैरामीटर्स होगा या मिनिमम साइज जिससे आएगा, तो दैट विल गिव यू योर मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है? तो पहला आपके पास क्या है, आपके पास जो है ना फॉर्म वर्क समझते हैं क्या होता है? यस सर Yes जी sir. सर। यस सर। अच्छा, फॉर्म वर्क की जो नैरो डायमेंशन होती है, नर्वस डायमेंशन, तो उसका 1/5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द कोर्स एग्रीगेट शुड बी 1/5 ऑफ द नर्वस डायमेंशन ऑफ द फॉर्म वर्क। बच्चों, केस 1 है, इट शुड नॉट बी मोर 1/5 ऑफ द नर्वस डायमेंशन ऑफ द फॉर्म वर्क, पहला है। दूसरा क्या होना चाहिए? इट शुड, अच्छा क्लियर कवर क्या होता है? क्लियर कवर समझते हैं आप? नहीं सर अच्छा, क्लियर कवर ये है ना, आपके पास रीइंफोर्सिंग बार है ना, दिस इज रीइंफोर्सिंग बार, और उससे जो जहां पे दीवार खत्म होती है, रीइंफोर्सिंग बार और दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज क्लियर कवर, समझते हैं? फॉर जी एग्जांपल, सर। एक तो जो है ना बच्चे, आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जो ना एफएससी के स्टूडेंट हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल दिस इज आपके पास कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, और ये रीइंफोर्सिंग बार है जा रहे हैं ऊपर ना, सॉरी, अच्छा ये इसके साथ रिंग बना हुआ है, ठीक है, और ये आउटर एज है, तो रीइंफोर्सिंग बार के एज से लेके आउटर एज तक जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज क्लियर कवर। नाउ यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे बोर हो गए। हाँ, ब्रेक दे दूं? नहीं सर बोर नहीं नहीं सर, बोर नहीं हुए सर। अच्छा, तो 3/4 होना चाहिए आपके पास, क्या क्लियर स्पेसिंग और रीइंफोर्सिंग बार के बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है ना, तो उसका क्या हो, 3/4 हो। अच्छा, अगेन 3/4 किसके लिए होना चाहिए? बिटवीन टू रीइंफोर्सिंग बार भी होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। दिस इज थर्ड, 3/4 होना चाहिए, 3/4, तो लिख भी देता हूं इधर, क्या होना चाहिए? 3/4 of that cover, again 3/4 of between two reinforcing bar, सॉरी 4 ऐसे लिखते हैं ना, और ये जो डायमेंशन है ना फॉर्म वर्क की ये डायमेंशन है ना, तो इस डायमेंशन का 1/5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/5। 3 हो गए हैं, ठीक है। चौथा ये होता है कि स्लैब होती है ना, जो स्लैब और बस छत की कितनी स्लैब होती है, कितनी थिकनेस होती है? 5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, कितनी होती है बच्चों?
सर यही होती है, 5 के करीब ही होती है सर। आसपास होती है। तो आपके पास जो है ना कोर्स एग्रीगेट साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द स्लैब। ठीक है, 4 कंडीशन हो गई हैं। एंड देयर इज ए अनदर कंडीशन, आपके पास जो है ना जो पाइप है जिससे जो ना कंक्रीटिंग होती है ना, आपने उसको कहते हैं हुज। आपने कंक्रीटिंग पाइप आपने देखी होगी, पंपेबल कंक्रीट होती है जो कंक्रीटिंग नीचे जो ना ग्राउंड फ्लोर पे हो रही होती है, और कंक्रीट मिक्सचर नीचे हो रहा होता है, और कंक्रीट को हम ऊपर छत पे लेके जाते हैं, चौथे फ्लोर पे या फिफ्थ फ्लोर पे। देखिए आपने ऐसे इस कंक्रीट जो पंप से लेके जाते हैं, वीडियोस में देखिए सर, वीडियो में वीडियोस देखिए। में देखिए तो वो जो सर। पंप में जो पाइप का जो साइज है, लिसन, तो उस साइज के 2/3 से कम होना चाहिए। It should not be more than 2/3 of the pump size, pumping pipe size of the hose। जो पंपेबल कंक्रीट का जो पाइप है उसके जो साइज के 2/3 से ऊपर ना हो। तो देयर these 5 पैरामीटर्स, among these 5 पैरामीटर्स आपके पास जो इनमें सबसे जो कम पैरामीटर होगा वो आपके पास मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट होगा। अब आ जाए आप अपने मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट पे। तो इफ इट इज द क्लियर डिस्टेंस इज 2 इंच, 1.5 इंच, किधर गया भाई बच्चों? Yes, sir. जी सर। अगर ये क्लियर कवर जो है 1.5 इंच है तो कितना बनेगा आपके पास, 3 और 4? बताओ ना यार। ये 1.125 है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर ये भी 2 इंच है तो कितना होगा? ऑलमोस्ट 1.5 इंच। इफ इट इज अराउंड 5 इंच। ये सर अगर 2 होगा तो 1.5 होगा। अच्छा, आपके पास नर्वस डायमेंशन जो है ना, इफ नर्वस डायमेंशन आर 4 इंच और 5 इंच, तो ये भी आपके पास 1/5 कितना होगा, 1 इंच से ऊपर ही होगा ना। सर अगर 5 है तो ये 3.75 होगा सर। वन वन 1/5 कितना होगा? अच्छा 1/5 नर्वस डायमेंशन। अच्छा, होल जो है ना, इस इफ द पंपेबल जो कंक्रीट है उसका जो पाइप है उसका जो है ना जो साइज है वो 3 इंच है, तो 2/3 ऑफ 3 इंच कितना होता है? 2 से ऊपर ही होगा ना। तो आपके पास तो ही मिनिमम होगा साइज कितना सर। बना? वो जो मिनिमम साइज क्या बना आपके पास? Sir, 2 inch. 3/3. हाँ, 1.125 सर। एग्जैक्टली। 1.125 सर। अच्छा, ये जो है ना आपका मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। Your maximum size of course aggregate will be the minimum size of the aggregates derived from the parameters, 5 parameters जो मैंने आपके पास अभी बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ये तो आप देखो ना, कॉलम और बीम की हम बात कर रहे थे ना, तो अब स्लैब के केस में क्लियर कवर जो है ना आपके पास होता है, कितना होता है, 1/4 इंच होता है ना, 3 और 4 इंच होता है। 3 और 4 इंच का 3 और 4 कितना होगा? क्या सर दोबारा बता दीजिए कितना? आपने जो है ना, अब क्लियर कवर जो है ना कॉलम के लिए होता है तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इंच क्लियर कवर ना, और 1.75 इंच। अच्छा, सिमिलरली बीम के लिए होता है 2.5 इंच, सही है ना। स्लैब के लिए क्लियर कवर कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट आपके पास होना चाहिए 1 इंच टू 0.575 इंच, 3 और 4 इंच स्लैब के लिए ना। सही है सर। तो स्लैब के केस में क्लियर कवर बहुत कम है ना, Yes, तो sir. आपके पास जो जो मैक्सिमम साइज है कोर्स एग्रीगेट का वो भी 3 और 4 इंच से कम होगा फिर उधर वहां पे, बिल्कुल सर। क्योंकि क्लियर कवर कम है ना। Yes, sir.
समझ आ रही है? ये सर समझ आ जी रही सर, समझ आ रही है सर। अच्छा, तो ये जो है ना आपने इस तरह आपने सिलेक्ट करने हैं। तो आपके जो सीनियर्स हैं या आपके वो रिलेटिव्स हैं, आप उनसे डिस्कस करें किसी वक्त आपके पास साइट पे जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इवन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर दे इवन डोंट नो हाउ टू सिलेक्ट द कोर्स एग्रीगेट साइज। ठीक है ना? तो हायर जो साइज है ना, आपके पास जितना आपके पास मैक्सिमम साइज होगा कोर्स एग्रीगेट का, आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है इतनी अच्छी होगी। पता क्यों अच्छी होगी? एक आपको पास जो है ना उस मैक्सिमम साइज पे पेस्ट कम लगेगा। ठीक है, अगर पेस्ट कम लगेगा तो उसमें जो है ना सीमेंट की अमाउंट भी कम आएगी, इकोनॉमिकल हो जाएगी ना। जी और सर। उसके और वाटर सीमेंट रेशियो भी उसमें कंट्रोल होगी, कम से कम होगी। ठीक है, और उसमें एयर वाइड कंटेंट भी कम से कम होंगे, और अल्टीमेटली इट विल गिव यू हायर स्ट्रेंथ। ठीक है एक्सपेंशन भी कम होगी वैसे सर, बात है जी। एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन, अगर एक्सपेंशन एंड बिल्कुल स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन। भी कम होगी। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है ना, और उसकी वर्कबिलिटी भी होगी। हाँ, सेग्रीगेशन का इशू आ सकता है, लेकिन वो प्रॉपर मिक्स डिजाइन हो तो फिर नहीं आएगा। ओके यू। अच्छा, अगला जो है जो एग्रीगेट्स हैं, अब देखो ना, हियर इज द एग्रीगेट असेंबली। अगर इफ वी डोंट यूज द सैंड, तो आपके पास देखो ना वाटर कितनी अमाउंट आएगी, दिस अमाउंट ऑफ द वाटर यूज होगा। अब देखो ना, ये जो एग्रीगेट्स हैं इसमें बीच में वाइड्स में वाटर फिल है। इफ वी यूज सैंड, अगर सैंड यूज करेंगे तो वाटर की अमाउंट कम हो गई ना टू सम एक्सटेंट। एंड इफ यू यूज लार्जर साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इंस्टेड ऑफ द स्मॉलर साइज, तो वाटर की अमाउंट मजीद कम हो गई है ना। ये सर। तो ये कम इसलिए हुई है, बेसिकली दिस अमाउंट ऑफ द वाटर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द पेस्ट रिक्वायर्ड। आपके पास अब देखो ना इंटरस्पेसेस में जो वाटर जो आपके पास अक्युमुलेट हुआ हुआ है, बेसिकली दिस वाटर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ द पेस्ट इन द कंक्रीट। ठीक है ना? तो आपके पास जितना एग्रीगेट साइज को हम बढ़ाते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ द वाटर हमारे पास कम से कम आएगा। क्यों कम से कम आएगा? बिकॉज रिक्वायर्ड पेस इज बिकम लोअर। ठीक है ना? तो यहाँ मैंने लिखा भी है, द अमाउंट ऑफ द मिक्सिंग वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ एट गिवन स्लम। ये जो है ना वाटर की अमाउंट जो ना स्लम पे भी डिपेंड करती है, गिवन स्लम। ठीक है ना, स्लम फिक्स है। इज डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करती है? ऑन द शेप एंड द मैक्सिमम साइज एंड द अमाउंट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। अमाउंट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, उसके शेप पे, उसके साइज पे, तीनों पे डिपेंड करती है। लार्जर साइज minimize the water requirement, thus potentially allow the cement content to be reduced. ठीक है ना? आप समझ गए हैं? Hopefully you got understood. तो ये आप इसको खुद देख लें। और अगला जो है आपके पास जो है आपने फाइनेंस मॉडुलस, आपको पता है क्या होती है? The coarse aggregate are always measured in terms of their coarse aggregate size, maximum size, whereas the fine aggregate जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन में यूज होते हैं ना, फाइन एग्रीगेट्स, उसकी जो ग्रेडेशन है उसको हम देखते हैं। The gradation of the fine aggregate are always represented in terms of their finest modulus. Do you know the finest modulus? What is finest modulus? Any of you? सर सरफेस एरिया से रिलेटेड हूँ। नहीं यार, ये फाइनेंस मॉडुलस ना सैंड के फाइन से है। फाइनेंस मॉडुलस आपको कैसे मैं पढ़ाऊंगा? आपने मटेरियल पढ़ा ही नहीं है। तो टाइम क्या है? अगली क्लास पे ना करें फाइनेंस मॉडुलस। मैं आपको जनाब, यस सर। व्हाट इज टाइम नाउ? 10 10:04 सर। ओके, सो यार आज क्लास हो सकती है जुमे की नमाज के बाद? आप फ्री कर ले रहे? मैं फ्री हूँ, तकरीबन 5 बजे क्लास ना ले लें। 5 बजे सब लेट नहीं हुआ। कोई लेट नेक्स्ट वीक कर लें आधे सर। घंटे के लिए बात सुने, जस्ट 40 मिनट्स के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।
सही है सर, बस सही तो है 5 बजे क्यों आप क्या करते हैं? सर, सही है पॉइंट। आप 5 बजे जो ना एक्सरसाइज करने जाते हो आजकल, क्या कर रहे होते हो भाई? पेंडेमिक है, घर पे रहो। या सोए होते हैं? बस ये है कि सर वो सोए सारा होते दिन हैं सर, कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, 5:30 सर तक पर उठते हैं पेरेंट्स से 6 डांट तक। पड़ती है। यार उठ जाना आज, यार मेरे लिए उठ जाना। सही है सर, ठीक है, सही है सर। तो मैं जो ना आपकी ले लूं अटेंडेंस।